Hello and welcome everyone to the channel of Imavate Academy. My name is Sunando Debnath. In this video, I'm going to start the sixth chapter of chemistry of class 9th, study of the first element hydrogen. A lot of students have asked me to put this chapter on my channel. It was not there on my channel. So on your requests, I'm here to start this chapter today. This is lecture 1 for this chapter. It's an important chapter and that is going to come in your final exams of class 9th. At the same time, I have also started your chapter of mathematics distance formula yesterday. Yesterday, I put up the first lecture of distance formula chapter from your maths. So that chapter also I will be teaching, and this also I will be teaching simultaneously. So keep tuned to the channel and subscribe to the channel and press the bell without fail so that whenever I upload a video, you get the notification instantly. So let us start the chapter today. So you see, as the name tells, the name of the chapter tells study of the first element hydrogen. This makes it very clear that hydrogen is the first element of the periodic table. This is itself a question. It can come as an important question. Name the first element of the periodic table. ये एक बहुत important question है. ये लिख लो. So the first element of the periodic table is hydrogen. So the heading of the chapter itself contains a question. ठीक है? Now आगे हमने क्या लिखा है? Hydrogen belongs to the first group and the first period of the periodic table. Periodic table जो chapter है वो तुम लोगों ने chemistry में पहले पढ़ लिया है. All right, and even I have put up my video on periodic table chapter that I have it on my channel, so you can watch that video. Periodic table पर है lectures. तो periodic table का जो first element है वो है hydrogen. And it belongs to first group. Group में number 1 मतलब group 1 and even फर्स्ट पीरियड में बिलोंग करता है. तो एग्जाम में अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, यू विल टेल हाइड्रोजन बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप एंड फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस एंड अ क्वेश्चन कैन कम. ये सेकंड पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. नाउ इट्स एटॉमिक नंबर इज 1. ये भी तुम जानते हो, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है. इट मींस व्हाट? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है. एटॉमिक नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन, isn't it? So atomic number is 1 of hydrogen. It means hydrogen has 1 proton in its nucleus. At the same time, it also means that in the neutral atom of hydrogen there is only 1 electron. इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि 1 proton है. Hydrogen has 1 proton in the nucleus as well as 1 electron revolving around the nucleus. तो एक ही प्रोटॉन है, एक ही न्यूट्रॉन है. एंड 0 न्यूट्रॉन्स होता है हाइड्रोजन के पास. 0 न्यूट्रॉन्स होता है. ओके वैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है. आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट कॉमन आइसोटोप व्हिच इज नोन एज प्रोटियम. ठीक है, प्रोटियम की मैं बात कर रहा हूँ. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना. तो मैं प्रोटियम की बात कर रहा हूँ जिसमें एक प्रोटॉन होता है एंड एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड 0 न्यूट्रॉन्स होता है. ये मैं प्रोटियम की बात कर रहा हूँ. दिस इज द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो उसके वैलेंस शेल में है. वैलेंस शेल मींस एक ही सेल है, एक ही शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो 1. ओके, तो ये हो गया हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में. नेक्स्ट, हाइड्रोजन शोज डुअल नेचर. ये नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे बुक का. देखो मैं ईच एंड एवरी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ बुक का, ठीक है, माइन्यूटली. तुम अगर इस लेक्चर्स को फॉलो करोगे तुम्हें और किसी भी नोट्स या किसी भी दूसरे सोर्स से इस चैप्टर को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है. ये ऑल इन ऑल है. इसीलिए मैंने चैप्टर को ब्रेक कर करके डिफरेंट लेक्चर्स में मैं इसको कवर करूंगा सो दैट ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन अ प्रॉपर मैनर. तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है बुक में वो है हाइड्रोजन शोज डुअल नेचर. मतलब 2 तरीके का नेचर वो शो करता है. मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल तुम लोगों ने पढ़ा होगा. सो मेंडेलिव के समय से हाइड्रोजन का पोजीशन को लेकर कंट्रोवर्सी है. हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहां रखा जाए ये एक कंट्रोवर्सी चल रहा है. मेंडेलिव को भी समझ में नहीं आया था वेयर वी विल पुट द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. एंड अभी जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे भी कंट्रोवर्सी है कहां हाइड्रोजन को रखा जाए. Although we have put the hydrogen in the first period and first group of the periodic table, उसको group 1 में रखे हुए हैं along with the alkali metals, but
it does not show all the properties of the alkali metals. एल्कली मेटल्स मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप 1 की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे हाइड्रोजन को भी हमने रखा हुआ है. सो हाइड्रोजन सबसे ऊपर है, फिर यहाँ पे लिथियम है, फिर यहाँ पे सोडियम है, फिर पोटेशियम है. ये मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ. तो देखोगे दीज ऑल आर मेटल्स, इसीलिए इसे हम कहते हैं एल्कली मेटल्स. ये सारे मेटल्स है. हाइड्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, बिल्कुल प्रॉपर्टी इसका अलग है. एक नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल्स हैं, फिर भी हमने हाइड्रोजन को मेटल्स के साथ रखा है. ये एक कंट्रोवर्सी है. कुछ बोलते नहीं, आप एक ग्रुप में एक ही सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को रख सकते हैं, आपने एक नॉन मेटल और मेटल्स को एक साथ कैसे रख दिया. लेकिन कुछ कारण है, द रीजंस आर देयर फॉर पुटिंग हाइड्रोजन इन द ग्रुप 1. Now here we will study the similarities today in this video कि हाइड्रोजन और ये जो सारे एल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन के बीच क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं जिसके वजह से हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा गया है. Similarities जरूर होगा, that's why hydrogen has been put up in the group 1 along with the alkali metals. So what are those similarities? And it's a very important part of your chapter where a lot of questions can be framed. This we will be covering today in this chapter. So मैं जब बोल रहा हूँ हाइड्रोजन का डुअल नेचर है, मींस हाइड्रोजन shows common properties with these alkali metals, जो मैंने अभी अभी बताया कि एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है. साथ साथ वो जो ग्रुप 17 में हैलोजेंस है ना, ग्रुप 17 में जो हैलोजेंस है उसके साथ भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है. मींस एल्कली मेटल्स कहां पे है, ग्रुप 1 में है. सो ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स के साथ भी हाइड्रोजन अपने प्रॉपर्टीज को सिमिलर प्रॉपर्टीज show करता है. Hydrogen shows resemblance with the alkali metals of group 1 as well as it shows resemblance with the halogens of group 17. इसीलिए इसका dual nature है. कंफ्यूज हैं हम लोग कि ग्रुप 1 में रखें इसको या ग्रुप 17 में रखें, क्योंकि ग्रुप 1 के प्रॉपर्टीज के साथ भी इसकी मैचिंग होती है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ भी इसके मैचिंग होती है. ग्रुप 17 में जो है उसे हम कहते हैं हैलोजेंस. ठीक है ना, इन द चैप्टर पीरियोडिक टेबल तुम लोगों ने ये पढ़ा है कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस बोलते हैं. ये सारी चीजें याद होनी चाहिए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स. ग्रुप 17 वाले को क्या बोलते हैं, हैलोजेंस. यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये तुमने लिख लिया होगा कि हाइड्रोजन शोज अ डुअल नेचर. व्हाई, ये क्वेश्चन आ सकता है. You will write hydrogen resembles the alkali metals of group 1 as well as the halogens of group 17. That's why hydrogen shows dual nature. अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, the similar properties between hydrogen and alkali metals. क्या क्या similar properties हैं hydrogen और alkali metals. सबसे पहला point, take a note of these points and try to understand them बहुत अच्छे से. You see, the first point is that hydrogen and alkali metals both have only one electron in the outermost shell. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन उसका एकमात्र इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1. ठीक है. इसके जस्ट हाइड्रोजन के नीचे कौन सा एलिमेंट है, लिथियम. लिथियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 1, बिकॉज लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स लिथियम हैज, 3. And that's why the atomic number of lithium is also 3. तुम चेक भी कर सकते हो periodic table खोलकर कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है. सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 1. लिथियम के जस्ट नीचे कौन सा एल्कली मेटल है, सोडियम. पीरियोडिक टेबल एक बार ओपन कर लो तो तुम्हें इजी होगा. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2 8 1, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. 11 होता है. सोडियम के नीचे पोटेशियम है, पोटेशियम का 2 8 8 1, दैट मींस 19 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, इसीलिए 2 8 8 1. सो कैन यू नोटिस वन थिंग कि लास्ट वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इन सभी एलिमेंट्स में वो सेम है, 1 1 1 1. That's why we have written that both hydrogen and the alkali metals have only one electron in their outermost shell. Very important point. Second, इन दोनों के वैलेंसी 1 होता है. हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 है, alkali metals के वैलेंसी भी 1 है.
ठीक है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को ये जो मेटल्स है ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबिलिटी पा सकता है। सो इसकी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या एक्सेप्ट करता है, ये कैटायन एनायन दोनों बनता है। एनीवे, सो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं इधर सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स डिस्कस कर रहा हूं, तो उस पर फोकस करते हैं। तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एज वेल एज वैलेंसी ऑफ द अल्कली मेटल्स इज आल्सो 1। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज both hydrogen and alkali metals can form cations. Cations का मतलब क्या होता है? Positively charged ions. Positively charged ions. मतलब क्या कि जैसे ये हाइड्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। सपोज द हाइड्रोजन डोनेट्स दैट 1 इलेक्ट्रॉन आल्सो, उसके पास अब 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। एक मात्र इलेक्ट्रॉन उसके पास है, उस इलेक्ट्रॉन को भी वो किसी को डोनेट कर दे, दैट मींस हाइड्रोजन -1 इलेक्ट्रॉन। -1 इलेक्ट्रॉन मींस हाइड्रोजन हैज डोनेटेड और इट हैज लॉस्ट 1 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो जाके इसके पास अभी कुछ नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन हैज 0 इलेक्ट्रॉन्स नाउ। तो hydrogen becomes H plus because it has donated 1 electron, so it has gained 1 positive charge, H plus। नेगेटिव को रिजेक्ट कर दिया तो पॉजिटिव बन गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव को अपने से हटा दिया, बन गया पॉजिटिव। तो इसी को हम कहते हैं ये कैट आयन है, कैटायन बन गया, मींस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन गया। This thing can be seen in the lithium and sodium, potassium, in all the alkali metals also. So let us say lithium का जो outermost electron 1 electron है outermost, उस electron को lithium अगर किसी को दे डोनेट कर दे, तो lithium will also develop 1 positive charge. Sodium भी ये काम कर सकता है, Na- electrons gives Na plus, and potassium भी ये काम कर सकता है। So metals ये बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, तो ये K+। सो देख रहे हो ना, ये सारे कैटायंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं। सो हाइड्रोजन आल्सो शोज अ सिमिलर प्रॉपर्टी विद अल्कली मेटल्स इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। बोथ ऑफ देम कैन फॉर्म कैटायंस। नेक्स्ट, both of them, hydrogen as well as the alkali metals, are good reducing agents. Now here, when I say reducing agents, you should have an idea about the term reduction. रिडक्शन के बारे में जानना है। रिडक्शन, दो टर्म्स होते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। मैं यहाँ पे उसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, रिडक्शन यहाँ पे किस मीनिंग से बोला गया है और क्या एक्सप्लेनेशन है रिडक्शन का। देन आई विल कम टू रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं, रिडक्शन। देयर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ रिडक्शन। आउट ऑफ देम वन ऑफ द डेफिनेशंस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मान लो किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन रिमूव कर लिया गया है, तो हम कहेंगे कि दैट कंपाउंड हैज बीन रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल, मान लो कि जिंक ऑक्साइड है। अभी जिंक ऑक्साइड में जिंक के साथ ऑक्सीजन है, और अगर अभी मैं इस ऑक्सीजन को यहां से रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो मैं क्या कहूंगा? जिंक ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस्ड। जिंक ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस्ड। और इसके साथ साथ हम क्या बोलेंगे कि जिसने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस किया वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, अगर ये आकर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये बन जाएगा जिंक अकेला एंड H2O वाटर। मतलब क्या? ये हाइड्रोजन आकर इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और ऑक्सीजन को हटा दिया जिंक से। पहले ऑक्सीजन जिंक के साथ था, अभी ऑक्सीजन आके अभी हाइड्रोजन आकर इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया एंड ऑक्सीजन को जिंक से अलग कर दिया। नाउ जिंक इज लेफ्ट अलोन एंड दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड। सो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, नाउ वी हैव ओनली जिंक, सो वी विल से दैट जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। लेकिन उसको किसने रिड्यूस किया? किसने उसका ऑक्सीजन को रिमूव किया? दिस हाइड्रोजन ने आकर ये काम किया। सो हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है
कि जो सब्सटेंस रेड्यूस्ड हो रहा है वो रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, समझने का कोशिश करो। जिंक ऑक्साइड रेड्यूस्ड हुआ है, वो रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है। उसको जिसने रेड्यूस किया है वो रेड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन ने रेड्यूस किया है, सो हाइड्रोजन इज द रेड्यूसिंग एजेंट। सो you see over here in the previous this thing, the same example with copper oxide is given. मैंने जिंक ऑक्साइड से एग्जांपल अभी समझाया था, ये कॉपर ऑक्साइड से यहाँ लिखा हुआ है। कॉपर ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन आया और आकर इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, जिसको वाटर बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। एंड कॉपर अकेला हो गया, कॉपर के पास अब ऑक्सीजन नहीं है, तो हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड इज reduced but hydrogen is reducing agent। तो हाइड्रोजन reducing agent है। साथ ही साथ जो एल्कली मेटल्स है वो भी ये काम करते हैं। लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, नीचे वाले को देखो। कॉपर ऑक्साइड, पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, मैंने सोडियम, जो सोडियम इज एन एल्कली मेटल, मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट कराया, तो सोडियम ने इस ऑक्सीजन को पिकअप कर लिया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। कॉपर अकेला हो गया, कॉपर के पास अब ऑक्सीजन नहीं है, तो कॉपर यहाँ पर रेड्यूस्ड हो गया क्योंकि ऑक्सीजन उससे छीन लिया गया है। सो कॉपर इज reduced. Who reduced copper? This alkali metal has reduced copper. So this alkali metal, sodium, is the reducing agent. Similarly, all the alkali metals are good reducing agents. तो हमने दो एग्जांपल देखा जिसमें हाइड्रोजन एक reducing agent है, दूसरे वाले एग्जांपल में this alkali metal sodium is a reducing agent. Hence both are reducing agents. Similar property है दोनों का, हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स का। इंपॉर्टेंट है ये। आगे के पॉइंट को देखते हैं, बर्निंग। ये जो हाइड्रोजन और ये एल्कली मेटल दोनों ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं। पहले हम हाइड्रोजन का डिस्कशन कर लेते हैं। हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, ये हमने लिया हाइड्रोजन, उसको ऑक्सीजन में बर्न किया। बर्निंग मतलब ही रिएक्शन विद ऑक्सीजन। किसी भी चीज को जलाएंगे तो ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में उसको जला रहे हैं। सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को हम यहाँ बोल रहे हैं बर्निंग। So hydrogen and oxygen are reacting to form this dihydrogen oxide, जिसे हम water बोलते हैं, dihydrogen oxide। ये सेम चीज मेटल्स, एल्कली मेटल्स भी करते हैं, वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलते हैं। जैसे लिथियम इज एन एल्कली मेटल, ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ बर्न हो गया एंड लिथियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे भी ये पोटेशियम एंड ऑक्सीजन, यहाँ O2 होगा, दिस 2 इज इन द बेस एंड ये KO2 बनेगा। यहाँ 2 लिखा हुआ नहीं है, प्लीज ऐड दिस 2 ओवर हियर, KO2। सो हमें यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, K plus O2 gives KO2, means potassium has reacted with oxygen, or you can say is been burnt with oxygen, and potassium oxide is being formed over here. So it is very similar to like यहाँ हाइड्रोजन ऑक्साइड बना था, इधर लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, तो रिएक्शंस बिल्कुल सिमिलर है। फिर ये जो नंबर्स हैं 4, 2, ये तो बैलेंस करने के नंबर्स हैं, ये इक्वेशन को बैलेंस कर लिया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो जब हम ये हाइड्रोजन जो गैस है, इसका एक साथ ही साथ एक चीज जान लेनी चाहिए, हाइड्रोजन को जब हम बर्न करते हैं पॉप साउंड से वो बर्स्ट करता है। Although pure hydrogen burns silently, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले इस चैप्टर में कि प्योर हाइड्रोजन साइलेंटली बर्न करता है, लेकिन हाइड्रोजन प्रीमिक्स्ड विद ऑक्सीजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड। यानी यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन को मैंने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये पॉप साउंड से बर्न करता है, पट से आवाज करता है। एंड दिस इज द वर्ड दैट यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम, यू कांट राइट एनी अदर साउंड। पॉप साउंड इज द ओनली टर्म दैट यू हैव टू यूज इन योर एग्जाम। The next similarity is combination with non-metals. Now both hydrogen and alkali metals, they react with non-metals like oxygen, sulfur and chlorine. These are the non-metals, oxygen, sulfur, chlorine. Hydrogen भी इनके साथ react करता है and the alkali metals भी react करते हैं। Reactions लिख लेते हैं यहाँ पर, write down the reactions। तो पहले हाइड्रोजन का लिखते हैं। So हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, H2 plus O2, ये तो तुम जानते ही हो, अभी अभी ऊपर में भी लिखा है, ये बन गया H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 and 2। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, मतलब इस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। हाइड्रोजन सल्फर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन प्लस सल्फर गिव्स
हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S gas. Write this down. हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा. सो देखो, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, ये नॉन मेटल्स के साथ वो रिएक्ट कर सकता है. एट द सेम टाइम कोई भी एल्कली मेटल्स भी इन तीनों के साथ रिएक्ट कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूं, मैं सोडियम लेता हूं. सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है. सोडियम सल्फर के साथ रिएक्ट कर सकता है, सल्फर सोडियम सल्फाइड बनता है, Na2S. इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, क्लोरीन के साथ, एंड NaCl बनता है. ओके, सो यहाँ मैं बैलेंस करने के लिए 2 and 2 लगा दूं. तो मैंने यहाँ पे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम प्लस सल्फर एंड सोडियम प्लस क्लोरीन तीनों के रिएक्शंस को लिखा है. एंड यू कैन सी दैट in the same way hydrogen also reacted with the same 3 elements or same 3 elements. तो ये सारे हो गए similarities between hydrogen and alkali metals. The next thing that we will study is this: alkali metals are always stored in inert organic solvents. Inert जो रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे केरोसिन. केरोसिन इज अ वेरी कॉमन इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. मैं अगर तुमसे पूछूं, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यू विल से केरोसिन. तो हमारे जो एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनको हमेशा हम केरोसिन में डुबा के रखते हैं, इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इमर्स करके रखते हैं. व्हाट इज द रीजन? दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक. Now these alkali metals are very very reactive. इसको अगर हम लोग ओपन में छोड़ देंगे ना, खुला छोड़ देंगे, they will react with the atmospheric oxygen and water vapor and carbon dioxide, and they will convert into oxides, hydroxides and carbonates. तो वो फिर उसका सरफेस में ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स का लेयर जम जाएगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है. Because alkali metals are extremely reactive, so that they do not react with these with atmospheric oxygen and all, we immerse it in an inert solvent, inert organic solvent. So that's what is written. Alkali metals are so reactive that they rapidly get tarnished when exposed to air. Tarnishing का मतलब ये reacts to form oxides, hydroxides and carbonates. This is due to the formation of oxides, hydroxides and carbonates on their surface. यहाँ पे मैंने reaction में लिख दिया है, suppose ये सोडियम है, इसको मैंने open expose करके खुला छोड़ दिया है, तो atmospheric oxygen के साथ react करके वो बन गया सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड बन गया. ये सोडियम ऑक्साइड फिर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, NaOH. और ये NaOH जो बना, ये फिर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर वेपर बन गया. तो ये इसी को हम कहते हैं टार्निश्ड. इसके सरफेस के ऊपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट का एक कोटिंग हो जाता है. And this is what we don't want to happen. If we want to keep the alkali metals in pure form, we need to keep it immersed in organic solvents. So due to their reactivity, alkali metals are always stored in inert organic solvents like kerosene oil, and this inert solvent prevents them from coming in contact with the air and moisture, isn't it? So अब react वो नहीं करता है. So आज हम लोग यहीं तक करते हैं lecture 1, and we will continue in my upcoming lecture with this chapter. Till then, God bless you everyone. Keep tuned to my channel. Take care.